السلام علیکم. میں بہت زیادہ کچھ تو نہیں کہہ پاؤں گا، بس کچھ باتیں ہیں جو باہر کی دنیا کو ان کے بارے میں جانتی ہے، ان کے جو علمی کارنامے ہیں اس سے کافی کچھ لوگ واقف ہیں، ان کی کتابیں اور ان کے سارے کام جو ہیں اس سے لوگ بخوبی واقف ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا، کہ جو سارے انہوں نے کام کیے ہیں اس کے پیچھے ان کی لگن اور ان کی محنت اور جس طرح سے وہ کام کرتے تھے. 2-3 چیزیں وہ ہمیشہ ہمیں سکھاتے تھے. بس وہی بات کہوں گا کہ مجھ سے یہی کہا کرتے تھے، بیٹا کوئی بھی کام اگر تمہیں کرنا ہے تو اس کو بہت محنت سے کرنا ہے. اگر محنت کرو گے تبھی تو A1 بن پاؤ گے. سیکنڈ اور تھرڈ کے بارے میں کبھی مت سوچنا. ہمیشہ A1 چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ کتاب لکھنا ہو یا کانفرنس یا سیمینار میں جانا ہو، وہ تیاری بہت محنت کرتے تھے اس میں. لیکن بہت زیادہ ہم لوگ کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی اتنی محنت کیوں کرتے ہیں. سیمینار میں جانا ہے، ایک پیپر پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے تھے میں پڑھ تو سکتا ہوں، کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن پڑھنے کا فائدہ دوسروں کو تبھی ہوگا جب میں اس میں کوئی نئی چیز شامل کروں گا، کوئی نئی چیز بتاؤں گا ان کو. تو ان کی یہ لگن، ان کی یہ محنت، یہ سب دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر محنت کرے تو کوئی بھی مقصد اپنا حاصل کر سکتا ہے. انہوں نے ہم لوگ کو یہی سکھا کہ خوب محنت کرو، باقی جو اس کا رزلٹ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، باقی اللہ دینے والا ہے. اپنی طرف سے خوب محنت کرو. بس اس کے علاوہ میں اور زیادہ کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. السلام علیکم. یقیناً ہم سب کو اپنی زندگی میں، جو یہاں کافی بڑی تعداد میں طلبا موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں پہلے نمبر 1 بننے کی کوشش کریں. پروفیسر الطاف احمد اعظمی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے تھے اعظم گڑھ میں، اور وہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے. میں اس کا تذکرہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ واپس اپنے وہاں سے BA کا کورس کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اس کے بعد وہ اپنے شہر، اپنے گاؤں چلے گئے پریکٹس کرنے کے لیے. انہیں باقاعدہ بلایا گیا جامعہ ہمدرد میں کہ وہ آئیں اور یہاں وہ اپنی سروسز دیں جب جامعہ ہمدرد اسٹیبلش ہو رہا تھا. تو جو لوگ اپنی زندگی میں ایکسل کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں، ان کی ہر جگہ پوچھ ہوتی ہے، ان کو اسی طرح بلایا جاتا ہے. پروفیسر الطاف احمد اعظمی کو ریٹائر ہوئے بہت زمانہ ہو گیا. اب وہ کسی بھی ادارے کے، کسی بھی انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ نہیں تھے، کسی سربراہ نہیں تھے. پھر بھی اگر آج ہم یہاں جمع ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کے کارنامے اتنے عظیم تھے. یہ کسی ادارے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی ادارے سے جڑے ہوتے ہیں، اس کے سربراہ ہوتے ہیں، تو اس کی تعزیت کے لیے لوگ آگے بڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ خاموشی سے خدمت کرتے ہیں ان کو یاد کرنے والے کم رہتے ہیں. لیکن پروفیسر الطاف احمد اعظمی کی خدمات کا دائرہ اور ان کے اچیومنٹس اتنے زیادہ تھے کہ آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے ہم سب ایک پیپلز کلیکٹیو کے طور پر یہاں جمع ہیں. میں اس کے بعد بہت طویل عرصے تک ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، جناب انیس احمد اعظمی صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. سابق سیکرٹری دلی اردو اکیڈمی، آپ سب کو معلوم ہے پروفیسر الطاف صاحب اردو اکیڈمی کے چیئرمین رہ چکے، وائس چیئرمین رہ چکے، جناب انیس احمد اعظمی. السلام علیکم. ظاہر ہے کہ الطاف احمد اعظمی میرے نام میں بھی اعظمی ہے اور اعظم گڑھ والوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. میں پہلی جماعت شریف دلی میں آ گیا تھا، والد صاحب کی ملازمت تھی. اعظم گڑھ سے اتنا نہیں جڑ سکا جتنا کہ الطاف صاحب کے گاؤں میں ایک آدمی جانتے تھے. اور وہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو سیدھی سیدھے اردو اکیڈمی دلی میں ہوئی اور بخری کی تھی. جتنے بھی وائس چیئرمین آئے ہیں ان کی جو خدمات ہے ان کو سنہرے الفاظ میں لکھا جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے ہی اکیڈمی حد تک پہنچی. اس میں الطاف اعظمی صاحب کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ اس قدر شائستہ، مہذب
तो उलूस इंसान अकेडमी को वाइस चेयरमैन की सूरत में पहली बार निकाला। 2001 से 2003 तक का उनका पीरियड था। बहुत खामोश तबीयत, बहुत ही ज़्यादा गहरा मुताला, इस्लामियात इस्लाम से जो फारिग थे और इस्लाम में भी मुसलसल वो जुड़े रहे। मदरसों इस्लाम से वहाँ जाते रहे, वहाँ की जो मैगजीन थी उसको देखते रहे, हर चीज़ में उनका जो है शामिल रहते थे, शरीक रहते थे। अक्सर अकेडमी आते थे तो उनको मेरे साथ मुझसे एक दो रिश्ता था कि तुम आजमगढ़ के हो। एक दिन मुझसे बोले कि तुमको मालूम है तुम्हारे सबसे छोटे मामू चाचा अब्दुल रहमान और हम दोनों क्लास के लोग थे 8 साल तक, ये रिश्ता तुम्हें नहीं मालूम होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वो आज़मी होने के नाते मुझे बताते रहे। और एकेडमी में जितने दिन रहे वो उनकी जो खिदमत है वाकई, एक तो उनको उससे पहले वाइस चेयरमैन बनने से पहले उनकी जो खिदमत थी साइंसी अदब साइंस उलूम को लेकर, तो उनको जो एकेडमी का बहुत ही नाम है साइंसी अदब का, वो 1999 में दिया गया था उनकी खिदमत को देखते हुए। क्योंकि मज़ाहिब के ऊपर उस पर उनका जो काम है बहुत ज़्यादा था, उस पर हमारा कोई अवार्ड नहीं बना, वो अवार्ड उन्हीं को मिलता। वो हर आदमी की जितनी मदद हो सकती थी खुद ही किया करते थे, और अगर कोई उनके साथ अच्छा नहीं करता था तो उनको कभी शिकायत नहीं होती थी। लेकिन एक वाक़या मैं आज कहना चाहता हूँ, क्या इसको मैं कभी शेयर नहीं कर पाऊँगा। जामिया हमदर्द में उन्होंने एक साइंसी उलूम पर, तिब्बी उलूम पर एक बड़ा सेमिनार किया था। मैं और मेरे एक साथी राफिजुद्दीन, उर्दू अकेडमी को अगर आप जानते हो तो राफिजुद्दीन को जरूर जानते होंगे, हम दोनों ही दीवाने थे, वहाँ बहुत से दीवाने थे, हम दोनों थे। और अल्ताफ साहब ने कहा कि यार मेरे सेमिनार में 2 दिन का सेमिनार अगर तुम लोग आ जाओ तो थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। हम गए, वो पूरे सेमिनार में परेशान थे, सेमिनार जिस तरह से आगे बढ़ रहा था वो और परेशान थे। फिर उन्होंने आखिर में सब कुछ बखुशना हो गया तो कमरा बंद किया, और मैं और आखिर दोनों गवाह हैं, और दरवाज़ा बंद करके वो जो फूट के रोए हैं, तो ऐसा हुआ क्या? कह रहे हैं कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे अपने लोग इस तरह का धोखा देंगे, और इस पूरे सेमिनार पर सबरदस्त करने की कोशिश करेंगे। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग? और रोते रहे और आयतें पढ़ते रहे और अपने आप को समझाते रहे कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे। पर उन्होंने ये बात, हम लोग 2 आदमी गवाह थे आज, क्योंकि वो नहीं है दुनिया में, इसी बात मैं कह पा रहा हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी में कहता नहीं, क्योंकि उन्होंने कहने से पहले कहा था। और वो ख़ास आजमगढ़ कलर बाबू बात बाहर मत करिए। बहरहाल उनको सलाम करता हूँ, उनकी जल्दों को सलाम करता हूँ, उनकी नीयत, उनकी जो खिदमत है उनकी कामों में हमेशा जिंदा जारी रहेंगी, हम उनका एहतराम करते रहेंगे। मैं जमाने में शरीक हुआ था और उम्र नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जिस वक्त लोग उनका चेहरा देख रहे थे मैं भी गया, और इस कदर मासूम थे, इस कदर मासूम चेहरा था कि वो मतलब बहुत देर में देख नहीं पाया, मैं हट गया वहाँ से। बहरहाल मैं उनको सलामत करता हूँ, शुक्रिया। मैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं। इधर लेफ्ट साइड काफी जगह हैं, तो आप लोग इधर तशरीफ लाएंगे तो अच्छा रहेगा। तशरीफ लाएं इस तरह आगे से आज हम यहाँ एक ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिसने इल्मी मैदान में, अदबी मैदान में और दीनी मैदान में बहुत अहम खिदमत अंजाम दी। अल्ताफ़ आज़मी साहब की शख्सियत मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थी, हमजह शख्सियत थी, और आप उनको देख करके, उनके पर्दाओं को देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि इनके अंदर कितनी गहराई और गहराई है, क्योंकि वो कभी अपनी इल्मियत का कोई रोक किसी पर नहीं उठाते थे। इंतहाई इंतसारी, आजिज़ी और मुनकसिरुल मिजाजी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तकरीबन 50 किताबें उन्होंने लिखी, और उनका सबसे बड़ा कारनामा तफसीर कुरान है। कुरान की 3 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी, और
दीनी मौज़ूआत पर, अल्लामा इक़बाल पर, शिबली पर और तमाम ऐसे मौज़ूआत पर उन्होंने किताबें तस्नीफ़ की और बड़ी मेहनत और मशक्क़त से उनकी जितनी किताबें हैं अगर आप पढ़ें, मैंने कुछ किताबें उनकी पढ़ी हैं, हो सकता है कि आप उनके बाद दलाइल से इख्तलाफ करें, लेकिन तहक़ीक़ और जुस्तजू का एक नया पहलू वो पेश करते थे। आखिर में तो उनकी एक किताब ऐसी थी जिसे कोई पब्लिशर छापने को तैयार नहीं था। उन्होंने जो हमारी मिली जमातें हैं उन पर तनकीद की थी और ये साबित किया था कि ये तमाम जमातें जो हैं अपने महवर से हट गई हैं और ये एक ऐसे रास्ते पर चली गई हैं जो इनके बानियान का मकसद नहीं था। तो ये बड़ी जरूरत का काम था। मुझे जब आसिफ ने ये बताया कि एक ताज़ियती जलसा है, जब उनके जनाजे में मैं शरीक था तो मुझे नहीं लगता था कि उनकी याद में कोई जलसा हो पाएगा, क्योंकि वो नेटवर्किंग के आदमी बिल्कुल नहीं थे। आजकल उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो नेटवर्किंग के लोग होते हैं और अपना जुगाड़ और तिगड़मबाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तिगड़मबाजी की और जुगाड़ की कोई जगह नहीं थी। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है और एक ऐसी चीज है जो आज के दौर में हमें उनका नजर आती है। मेरा उनसे एक ताल्लुक था, वो मुझे पढ़ते थे और मैं उनको पढ़ता था और बड़ी मोहब्बत उससे करते थे वो। और एक बार मेरे गरीब खाने पे भी तशरीफ लाए वो, मुझे बहुत खुशी हुई। बहरहाल मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से ये मेरी आजिज़ाना दुआ है कि उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है और मैंने सबसे गुजारिश भी की है कि 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हम चाहेंगे कि बहुत सारे शख्सियात यहाँ मौजूद हैं महफिल में। सब लोग अगर सबकी बातें हम नहीं सुन सकें तो कम से कम 10-15 मुक़र्रिरीन की बातें तो हम सुनेंगे। मैं उनके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा है मैं आवाज़ दे रहा हूँ। इसके बाद प्रोफेसर अंसारी साहब को तशरीफ लाएँ और पहचाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान किराम, हमारे जामिया के साथी और बच्चे, मैं प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आज़मी का करीब तरीन पड़ोसी था। 3-3.5 साल की मुद्दत हमने जामिया हमदर्द में गुजारी और हम लोग बी ब्लॉक में रहते थे। एक ही फ्लोर पे मैं, अल्ताफ अहमद आज़मी साहब और बसीर अहमद खान साहब, हम तीनों एक फ्लोर पे रहते थे। तो शायद मेरा दरवाज़ा उनके दरवाजे से ज़्यादा करीब था बसीर भाई के मुकाबले। तो वी वर द मोस्ट इमीडिएट नेबर एंड वी स्पेंड अबाउट 3.5 years टुगेदर। तो हम लोग जहाँ एक दूसरे को एकेडमिक हैसियत से जानते थे, वैसे ही एक इंसान की हैसियत से भी बहुत अच्छे से जानते थे और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। बहुत ही नफीस इंसान थे। अच्छा, हमारा नफाजत से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था। तो वो ये कहा करते थे कि अंसारी साहब, आपका अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी सादगी मुझे बहुत पसंद आती है। तो वो हिम्मत अफजाई करने की बात थी। हालांकि उनके महफिलों में और उनके समाज में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई गैर शाइस्ता इंसान उनके साथ रहे। अक्सर उनके घर में चाय पीने का मौका मिला। इरफान और इनकी 2 बहनें माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत चाय बनाया करती थी। हमारे घर में कभी कभी शायराना महफिल भी हुआ करती थी और ख़ास तौर पर तब जब बिहार से डॉक्टर कलीम अहमद आजिज़ दिल्ली तशरीफ़ लाते थे
तो हम अपने घर में एक मजलिस मुनाक़िद किया करते थे। तो जामिया हमदर्द के क़याम में भी एक मजलिस ऐसी हुई जी ब्लॉक में। डॉक्टर अहमद महफूज भी कभी हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं उस मजलिस में, लेकिन जामिया हमदर्द में जो शायराना महफिल जमी उसकी सदारत जनाब सैयद हामिद साहब ने फरमाई थी, और अल्ताफ़ अहमद आज़मी, बसीर साहब और दिल्ली के दूसरे शुअरा कराम, मुझे याद नहीं कि हमारे महमूद साहब थे या नहीं उस वाली में। तो वो सदारत और वो मौका ऐसा था कि कलीम आजिज साहब भी, क्योंकि बहुत बुजुर्ग इंसान थे और बहुत पाए के शायर थे, तो ज़्यादातर तो हम लोगों ने शायरी उन्हीं से सुनी। और अल्ताफ़ साहब शायरी तो करते थे लेकिन कभी शेर अपना पढ़ते नहीं, और हम लोगों की ख्वाहिश थी कि अल्ताफ़ साहब भी कुछ अपना कलाम सुनाएं। तो और फिर सदारती गुफ्तगू के बाद हम लोगों ने सैयद हामिद साहब से भी गुजारिश की कि सर कुछ अपना कलाम आप भी सुनाएं। तो बरदस्ता उन्होंने कहा कि जो आखिरी शेर मैंने अपनी ज़िंदगी का लिखा था वो आज से 50-55 साल पहले लिखा था। तो ये बहुत, लेकिन बहरहाल आपने भी, सैयद हामिद साहब मरहूम ने भी अपनी शायरी के कुछ अशार सुनाए, और अल्ताफ़ आज़मी साहब से उन्होंने फिर गुजारिश की कि भाई आप अल्ताफ़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो कुछ अपने कलाम सुनाए। तो वो एक महफिल थी जो बहुत ही यादगार। अच्छा, अल्ताफ़ आज़मी साहब हमें अपने साथ कई बार अपनी जो इल्मी मजलिसें थी हमें शिरकत की दावत देते थे, और एक बार हम लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गए, उनका एक लेक्चर था, तो हमें खिदमत गुजार की हैसियत से ले गए कि उनके जो ओवर हेड प्रोजेक्टर के लिए जो स्लाइड्स यूज़ होती थी, ट्रांसपेरेंसी, उनको चेंज करने के लिए एक मुनासिब आदमी चाहिए था तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई आप हमारे साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। उस वक्त बच्चों अभी LCD प्रोजेक्टर्स नहीं आए थे, कहीं आ गए होंगे तो मैं नहीं जानता, 2001 या 2002 की बात है। तो मैं, और बहुत ही उनका गुफ्तगू, वो इनफैक्ट जामिया हमदर्द में भी जो CCRUM का जो लिटरेरी सेक्शन था उसमें वो प्रोफेसर थे, और फैकल्टी के साथ उनको एसोसिएट कर दिया गया था। और वो खुद भी कभी कभी अपनी तारीफ में, और हमें याद है कि उन्होंने उस ज़माने के जो वाइस चांसलर थे सिराज हुसैन साहब, उनके सामने भी ये कहा कि मैं उन चंद हुक्मा में से हूँ, हकीमों में से हूँ जो नफ्स देख करके मर्ज बता देते हैं। ये उनकी खूबी थी, वो नफ्स देखते थे और बता देते थे कि आपको किस किस चीज़ की तकलीफ है। तो बड़े लोगों में थे, और हमारी ये खुशकिस्मती रही कि हमें उनका साथ नसीब रहा, एक पड़ोसी की हैसियत से भी, और हम लोग एक ही बिल्डिंग में बैठते भी थे, जो वहाँ की लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी जामिया हमदर्द की, नसीब भाई और वो तमाम लोग। तो उनके बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, उनसे हम किताबें ले करके पढ़ा करते थे, तो वो अपना नुस्खा हमें दिया करते थे, और इस शर्त पर कि इसको पढ़ेंगे और आप वापस करेंगे। जाहिर है कि उनके पास वो आखिरी नुस्खा रहता होगा, और हम खरीदते तो थे नहीं, उन्हीं से लेते थे और पढ़ते थे। कभी कभी जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि उनकी बाज़ बातों से लोग मुत्तफ़िक़ नहीं भी हो सकते थे, और ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ। तो हम अपनी लाइल्मी की वजह से उनसे कभी कभी बहस में भी पड़ गए, मुहासा हुआ, और जाहिर है कि वो हमसे बहुत सीनियर थे, लीग की हैसियत से भी, एक प्रोफेसर की हैसियत से भी, तो वो हमको समझाने में कामयाब हो जाते थे, और हम उनकी बात को बहुत अच्छे से मान लेते थे। उनकी 2 बेटियां हमारे घर में अक्सर आया करती थी, हमारी बीवी से बहुत अच्छा उनके ताल्लुकात थे, बहुत खुश रहती थी। और इरफान माशाअल्लाह यहाँ मौजूद है, हमारा दिल चाहता था कि ये कुछ और सुनाते, लेकिन ये घबरा गए। इनका MBA में एडमिशन जब हुआ था तो हम उस वक्त फैकल्टी के टीम थे, तो उसमें भी कुछ हिस्सा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौके पे हम लोग ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं, और उनके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लिए जन्नत में अच्छे से अच्छा और बेहतरीन मकाम अता फरमाए, और उनके बच्चों को दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में भलाइयाँ मराहत फरमाए।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उनकी शायरी का जिक्र हुआ, कभी कभी किसी ने मुझे उनका शेर भेजा कि अनागुज़ीदा है हर शख्स मेरी बस्ती का, अनागुज़ीदा है हर शख्स मेरी बस्ती का, किसी ने शाखे समरदार का शौक नहीं। मैं जिक्र भी शायरी का हुआ और महफिल का हुआ। प्रोफेसर अहमद महफूज इस महफिल में मौजूद थे और इस महफिल में भी, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर अहमद महफूज साहब तशरीफ लाएं। ख़वातीन और हज़रात, ये जलसा प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद आज़मी मरहूम की याद में मुनक़िद हुआ है। और सच पूछिए तो यहाँ जितने लोग हैं, मुझे पूरा एहसास है कि उनको मरहूम कहते हुए जैसे ज़बान रुक रही है। उसकी वजह यह है कि अभी इसी कोरोना के ज़माने में अल्ताफ़ साहब बीमार हुए, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए और उसका बहुत शदीद असर उन पर हुआ। और फिर एक तरह से वो जब बीमार हुए तो उसके बाद वो जागर नहीं हो सके। तो अब मैं बहरहाल, मैं तो खैर उनके सामने बहुत छोटा, मैं तो यहाँ दिल्ली में अपने तालिब इल्मी के ज़माने में मेरी वो उन लोगों में थे कि जिनको सेमिनारों में, इल्मी मुज़ाकरों में गुफ्तगू करते हुए या पेपर पढ़ते हुए सुनना ऐसा ज़बरदस्त तजुर्बा था। यानी वाकई लगता था कि कोई सही मानी में कोई आलिम जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। और अल्ताफ़ साहब, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे उकास मैदान तो ज़ाहिर किए इल्मेटिक था, खुद ज़ाहिर हकीम भी थे, लेकिन इसके बावजूद अल्ताफ़ आज़मी साहब का जो इल्म का पूरा दायरा, इतना वसी दायरा कि उसमें इस्लामी उलूम, फ़लसफ़ा और अदब, इन चीज़ों पर जो उन्होंने जो काम किए वो गैर मामूली है। मुझे अक्सर ये एहसास होता है, ये बात अभी आई भी कि अल्ताफ़ साहब किसी भी इल्म के मैदान में ज़ाहिर है कि तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ होना ये कदर ज़रूरी नहीं होता। बड़े बड़े जो हमारी रिवायत में, इतनी रिवायत में बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं उनसे भी इख्तिलाफ़ किया गया है। लेकिन अल्ताफ़ साहब ने जितने भी काम किए हैं उसमें कुछ चीज़ें पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी है और उनको जो सुना है, तो एक तो सबसे बड़ी बात जो अल्ताफ़ साहब के अंदर थी कि वो जो भी उनका तसव्वुर या कॉन्सेप्ट था वो इतना वाज़े, इतना पुख्ता और अपनी उस बात पर वो इस तरह असर्ट करते थे। और ये बात सही है कि वैसे तो बहुत उनके अंदर इंकिसार और ईज़ था बहुत मिलने में, बिल्कुल ऐसा कहीं दिया इतने बड़े जलसे में अगर अल्ताफ़ साहब आते तो शायद वो बिल्कुल पीछे बैठ जाते, ये उनका अंदाज़ था। लेकिन इल्मी मामलात में उनकी तहरीरों में भी और गुफ्तगू में भी ये बहुत इम्तियाज़ी बात थी कि जो भी उनका मौक़िफ़ होता था या जो उनका ख्याल होता था उसको जिस तरह से इस्तेदलाल के साथ उस पर वो जोर देते थे। और ये गोया ये बहुत कम होता है। आमतौर से ये होता है कि उलूम के मैदान में बहुत से लोग जो है वो अपना सही स्टैंड ही नहीं ले पाते कि आपका सही स्टैंड क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन हमें साफ मालूम होता था और उनकी गुफ्तगू और तहरीर दोनों में ऐसी वज़ाहत और ऐसी सराहत नज़र आती थी कि हमें साफ मालूम होता था कि अल्ताफ़ साहब जो है वो क्या कहना चाहते हैं और उनका मकसद क्या है, उनका तसव्वुर क्या है, उनका ख्याल क्या है। तो और एक चीज़ और जो सब लोगों ने महसूस की होगी, नहीं महसूस की, कि आम तौर से उलूम के मैदान में ओरिजिनल ख़यालात बहुत कम आते हैं।
ये अल्ताफ़ साहब का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ था, और यही जैसे अभी इशारा भी हुआ कि अक़बाल के बारे, ख़ास तौर से अक़बाल के जो खुतबात हैं तशकील जदीद रायात इस्लामिया, ऐसा गहरा जो फलसफियाना मामला है, इनका कलाम है, उसमें उस पर जो अल्ताफ़ साहब ने तनकीद लिखी है और उसका जो जायज़ा लिया है, तो ऐसा बहुत ज़रूरत और हिम्मत की बात है कि अक़बाल के ख़यालात से इख्तिलाफ़ करना और इस्तिदलाल के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ साहब हालांकि अच्छी उम्र पाई, 80-81 साल की पाई, लेकिन जिस तरह वो अभी एक्टिव थे, काम कर रहे थे, इतनी किताबें, ये काम उनके सामने आ चुके हैं, बहुत से काम उनके एक तरह से ज़ेर तारीफ़ थे, ज़ेर तस्नीफ़ थे। तो यानी हम लोग तो बिल्कुल यानी लगता ही नहीं था। अभी चंद इसी साल के शुरू में जलसे में अल्ताफ़ साहब यहाँ गुलबदर में ही मंजर आज़मी साहब पर एक सेमिनार हुआ था, बल्कि नाज़िर साहब ने कराया था, उसमें अल्ताफ़ साहब आए, हम लोग थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जो है उतनी जल्दी हमसे विदा हो गए। बहरहाल हम लोग तो बस ये है कि उनका जो इल्म का जो मिशन था, उनके जो मकासद थे कि इल्म की दुनिया में गौर फिक्र करना और बिल्कुल यानी गोशा नशीनी, बिल्कुल नमूद और नुमाइश तो कहीं दूर दूर तक अल्ताफ़ साहब ने की। ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो थोड़ा सा काम करके लोग ये चाहते हैं उसका बड़ा जिक्र हो, बड़ा हो, लेकिन अल्ताफ़ साहब सही मानी में, हकीकी मानी में जो एक इल्मी शख्सियत होती है या एक इल्मी शख्स होता है, उसका वो बिल्कुल जीता जागता नमूना। और ज़ाहिर कि अदब से भी, शायरी से भी उनको शरफ था, उनका शहीद मजमुआ भी शायर हो गया, बल्कि एक मजमुआ और ज़ेर तरतीब था। तो अल्ताफ़ साहब जो है वो मुक़दमात ज़माना में थे, वो इक्का दुक्का लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो अपने इल्म और अपनी शख्सियत, अपनी सादगी, अपने अखलाक से ऐसा गहरा नक्श छोड़ते हैं कि वो बहुत देर तक वो दिलों पर कायम रहता है। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्ताफ़ साहब तो अपने जवान रहमत में आला मकाम अता करें। बहुत शुक्रिया। हमने प्रोफेसर अब्दुल करीम अंसारी साहब को सुना शायरी के हवाले से बात हुई। प्रोफेसर महमूद साहब ने उनके अदबी और इल्मी गोशों को रोशन किया। मैं उनके एक और साथी प्रोफेसर मोहम्मद फारूक साहब जो एम्स जामिया हमदर्द से भी उनका ताल्लुक़ रहा और एम्स से रिटायर्ड हुए डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और ख्यालात का इज़हार करें। तो सब सारे मुक़र्रिरीन से बस यही गुजारिश है कि 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें। सैयद फारूक साहब यहाँ आ चुके हैं, इसलिए मेरा काम बड़ा आता है। अगर सुनना है तो सैयद फारूक साहब को सुनिए। नाशीद में हड्डी जोड़ है, तो उसको अदब से क्या ताल्लुक बेअदब कहा जा सकता है, लेकिन भारत एक अदबी शख्सियत की याद में इकट्ठा हुए हैं। मैं मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का, टीम की मीटिंग अटेंड करने का, बहुत सारी चीज़ें। जब भी उनसे मिलता था ऐसा लगता था जैसे वो एक मोहब्बत का समंदर क्रिएट करते हैं और आप उसमें होता निकल धोकर लगा के बाहर निकलते, बड़ी मोहब्बत क्रिएट करते हैं। अखलाकियात का बेहतर नमूना अगर देखना है तो आपको याद करना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ
इदारों को उन्होंने हेड किया। उर्दू के हेड तो 23 फिलीपीन थे। जैसा कि आपने बताया अलग अलग हकीम थे, नवाज थे, नफ्स थे, वो ये भी बता देते कि आपने 3 दिन पहले क्या खाया। अगर कि मैं उसको यकीन नहीं करता था। हमारी उनसे खूब गुफ्तगू होती थी इस मामले में, क्योंकि हिकमत का मॉडर्न मेडिसिन से अक्सर ये तस्कादुम होता है। लेकिन भारत काफ़ी चीज़ है जिसको मानना तो पड़ेगी, जो हमारी साइंस नहीं मानती। मोहब्बत इस तरह आखिरी वक्त तक, अभी इसके 3-4 महीने पहले वो तशरीफ है, देखा आपको तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं भाई, मैं तो आया हूँ अपनी मोहब्बत जताने के लिए, हमारी दोस्ती की तुमसे तो मेरे थाने जो 16 में है 28 है, तो बड़ी मोहब्बत और गुजर करता हूँ। जैसा मैंने ईमानदारी से आपके सामने बात रखी, मुझे तकलीफ करना नहीं आता। अपने एडजस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह मग़फ़िरत करे और आला मुकाम जन्नत में गए और मुताबिक मैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जनाब कमरुल हसन बेग साहब से गुजारिश कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। मेरा अल्ताफ़ फातमी साहब से डायरेक्ट तो कभी कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन मेरे मरहूम वालिद से उनका ताल्लुक़ था और मेरा ये ताल्लुक़ था कि वो आजमगढ़ से थे और मैं भी आजमगढ़ से हूँ। ये एक हम लोग का ताल्लुक़ था और उनके अक्सर मेरे वालिद जो है उनके बारे में बताया करते थे कि ये इस्लाह से, क्योंकि मेरे वालिद के बड़े भाई जो है वो भी इस्लाह से पढ़े थे और इनका भी जो है वो इस्लाह से ताल्लुक़ था, तो उस बारे में भी जिक्र रहा करता था। मैं जब भी किसी ऐसे शख्सियत का इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से जाता है, तो मुझे वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जहाँ भी गए हैं वहाँ भी जो है जिस तरह से उन्होंने अदबी उसमें जो है वो अपनी रोशनी लुटाई, और यहाँ जो हम किताबें देख रहे हैं उससे उनकी कद का अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े कद के आदमी थे वो, और इस उम्र में जो है जितनी किताबें वो लिख गए शायद हम लोग के लिए पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो मैं सिर्फ इस उसके साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आजमगढ़ से ताल्लुक़ भी खूब है। ये इस प्रोग्राम का जो खाका है वो असल में डॉक्टर नाजिश इस्लाही ने बुना, मैं तो उसमें बाद में शामिल हो गया। और हमने बल्कि ये कहा कि किसी ने कहा कि आप प्रोफेसर अल्ताफ़ फातमी साहब को आजमगढ़ वालों को याद करना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, आजमगढ़ वालों के लिए नहीं, उनके तो जो हल्का है और जो उनके कारनामे हैं वो सारी दुनिया के लिए। और फिर हमने देखा भी कि एक के बाद एक अमेरिका में उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, अभी कल यूएई में हुई, अलीगढ़ में हुई, तो सब तरफ उनको याद किया जा रहा है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। क्योंकि जो आप जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग एक नज़र इन किताबों पर डालें कि कौन सा ऐसा मौजू नहीं है, तिब का, साइंस का, अदब का, कुरानियात का,
फ़िक़्ह का, हदीस का, इक़बालियात का कौन सा ऐसा मौजू नहीं है जो उन्होंने टच न किया हो। और वो तो हर मौजू पे और बड़ी बड़ी शख्सियतों से, पाए की शख्सियतों से उनका ये मौक़िफ़ भी था कि वो इख्तिलाफ़ करते थे और भरपूर इख्तिलाफ़ करते थे, लेकिन अपनी बात दलाइल से साबित भी करते थे। उन्होंने मौलाना आज़ाद की तफसीर पे भी उन्होंने कुछ इख्तिलाफ़ात किए और उसको साबित किया। उन्होंने इवन हजतुल्लाह बालिगा जो शाह वलील्लाह की किताब है, उस किताब पे भी उसके कुछ पहलुओं पर उन्होंने कहा कि ये इसमें नज़रसानी होना चाहिए। तो ऐसी शख्सियत थे, वो जमूद के कायल नहीं थे, वो इख्तिलाफ़ करते थे और नई राहें निकालने वाली शख्सियत थी उनकी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब मोहतरम उनके बहुत तवील अरसे से जिन लोगों ने जिन मौजूदात का मैं जिक्र किया, एक मौजू उसमें इस्लामियात है और जिस पर उनका काम रहा है। और उस रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर अल्ताफ आज़मी साहब का जामिया मिलिया के इस्लामिक स्टडीज़ से इंटरेक्शन रहा, वो यहाँ आते रहे। मैं यहाँ के सदर शोबा प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं, अपने ख्याल करेगा। मोहतरम हाज़रीन, जामिया से हमारे शरीके काश तलबा और जामिया से बाहर के आए हुए मौजूदी, हमारे लिए ये खुशी की बात भी है और गम की भी। जब आसिफ साहब ने हमें इसके बारे में खबर दी पिछले हफ्ते और फिर अभी कल याद भी दिलाया, तो एकदम बेसाख्ता ये निकला कि ये काम जो आप कर रहे हैं इसे हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी करना चाहिए था, क्योंकि अल्ताफ़ साहब के सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जहतों को यहाँ खोला और आखिर में बोलने वाले का जब नंबर आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सब कुछ कहा जा चुका होता है, तो सिवाय दोहराने के और कोई चीज़ नजर नहीं आती है। मेरे लिए मेरा उनका ताल्लुक़, जो मैंने जब उनको पहचाना के कमोबेश मुझे भी 40 साल का अर्सा हो गया, लेकिन उनसे पिछली 3 दहाइयों से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ रहा था। वो इस निस्बत से भी कि गुज़श्ता 7-8 साल पहले जब मैं सदर शोबा था तब भी हमने उनको एक मरतबा दावत दी थी और उन्होंने आके फ़लसफ़े पर हमारे डिपार्टमेंट में लेक्चर दिया, जहाँ वो एक तरफ तिब की हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे जिसकी वो नौकरी करते थे, लेकिन वो अपनी ज़हनी तसल्ली के लिए, या यूँ कहिए कि जैसे सरकारी अफसरान शाम को क्लब जाते हैं और एक अलग दूसरी ज़िंदगी में वो अपने आप को तरोताज़ा करते हैं, तो अल्ताफ़ साहब भी हिस्ट्री टिप से हटकर जब वो इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते थे तो उनका मुझे याद है जुमला था कि मैं तरोताज़ा हो जाता हूँ। इस्लामिक हिस्ट्रीज़, उर्दू ज़ुबान, फ़लसफ़ा, ये तमाम मौज़ूआत उनके लिए थे और उन्होंने इन तमाम में अपनी काविशें हमारे सामने जो पेश की, जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा कि न सिर्फ वो आज़मगढ़ और हिंदुस्तान तक महदूद बल्कि आलमी पैमाने पर उनको हमेशा इल्मी काम की हैसियत से उसकी पजीराई होती रहेगी। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो अब हम किताबों में पढ़ते हैं सिर्फ, इस मौजूदा ज़माने में ये ख़त्म हो चुका है। शायद वो उसकी आखिरी कड़ी तो नहीं, लेकिन चंद लोग शायद और ऐसे मिले कि जो एक ही वक्त में कई सब्जेक्ट्स, कई मज़ामीन पर उनका उबूर था। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे असरी उलेमा का तरीक़ा था कि वो डॉक्टर होते थे, साथ ही साथ थ्योलॉजियन भी होते थे, साथ ही साथ फ़क़ीह भी होते थे, मुहद्दिस भी होते थे। तो ये जो हमारे असरी उलेमा का एक रिवायत थी, उस रिवायत का ही एक ये हिस्सा थे इस मौजूदा दौर में, जो बहुत ही अब शाद व नादिर हो गया है। अब तो हम तरक्की के नाम पे माइक्रो मैक्रो के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक ही फील्ड में अपनी ही दूसरे ब्रांच से वाकिफ नहीं होते हैं। तो भारत टाइम कम है, आप तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं जो बाहर से आए, हम लोग भी सुबह से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कामों में यहाँ थे, अब इस वक्त आखिरी हिस्सा है।
मैं अपनी तरफ से एक ताल्लुक हमारा जो उससे शुरुआत हुई थी वो रह गया घर में, कि उनकी बच्चियों का अभी 2 का जिक्र आया, मैं पीछे सुन रहा था, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सी बच्ची थी। उन्होंने आपसे 15 साल पहले इत्तेफाक से जामिया मिलिया से ही MA इस्लामिक स्टडीज़ किया। तो उस दरमियान जब वो जामिया में थी, उनकी वो साहबजादी, तब अल्ताफ़ साहब बिल्कुल हमदर्द और जामिया में उनके लिए कुछ वक्त नहीं था। उस वक्त वो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में हफ्ते में कम से कम 1 बार तो जरूर आ जाया करते थे। और अब्दुल वासिफ साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, उनका कमरा होता था, अल्ताफ़ आज़मी साहब होते थे और हम कुछ जूनियर असातिज़ा वहाँ सब बैठे होते थे। और इसी तरह के मौज़ूआत पर, जैसे उन्होंने कहा कि वो बड़े से बड़े स्कॉलर से मरूब नहीं होते थे, ये सबसे अच्छी बात थी। और मैंने भी कोशिश की कि उनसे ये चीज़ सीखूँ कि मरूब मत हो नाम से पैमाने पे पहले चेक करो, उसके बाद फिर अपनी राय दो। वहाँ पर तज़लील और किसी तरह के कमेंट वाला अंदाज नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचने और समझने वाला अंदाज होना चाहिए। अल्ताफ़ साहब में अच्छी खूबी ये थी। एक रिश्ता मेरा उनका और भी था कि मैंने जब 92-93 में अपनी PhD कंप्लीट की और जो मौजू मैंने अख्तियार किया था, जिस किताब का हवाला भी किसी ने मुझसे पहले पेश होने 3-4 बोलने वालों में से किसी ने कहा था, जमातों पर काम, तहरीकों के हवाले से, तो मैंने भी 92 में किया था और 95 में वो मकतबा जामिया से किताब छपी थी। तो उसके फ़ौरन बाद ये किताब, ये काम उन्होंने किया था तहरीकात के हवाले से, और काफ़ी हमारी उनके सिलसिले में। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो तुम्हें परेशानी आ रही थी कि तुम्हारी, मेरी भी किताब उस पर इत्तेफाक से तहरीकात में उर्दू ज़ुबान में पहली किताब ऐसी हुई थी जिसको छापने के लिए आसानी से कोई तैयार नहीं था। ख़ासतौर पर उस तहरीक के ज़िम्मेदारान तो कोई तैयार नहीं थे जिनके अपने बड़े बड़े मकतबे भी हैं। तो वही चीज़ अल्ताफ़ साहब से हमने शेयर की। वो कहा कि बेटे यही चीज़ मेरे से भी हुआ, मैंने तो कोई ज़रा थोड़ा और रिसर्च की थी। तो हम लोग वहाँ से एक, शायद मुझे मौका मिला उनकी सोहबत हासिल करने का, फिर उनकी बच्ची यहाँ आई, फिर उनको फ़लसफ़े के हवाले से दिएगा, और फिर अब एक हिंदुस्तान ही के नहीं आलमी पैमाने के स्कॉलर की हैसियत से हम उनको देखते थे, उनकी तहरीरों को पढ़ते थे। अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अदा करे। और सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम ये दुआ करें कि हम जैसे लोग या हमसे आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है, अल्लाह ताला उन जैसी सीरत और सिफात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तब तो याद करने का फ़ायदा है। वरना तो ज़ाहिर सी बात है, कब्र के साथ साथ, सालों के साथ साथ, सदियों के साथ साथ लोग भी ज़ाया हो जाते हैं। वो जिंदा जब ही रहेंगे जब उनके अंदर जो खूबियाँ थी, मैं पैगम्बर नहीं कह रहा हूँ कि सारी खूबियाँ थी, यहाँ हो सकता है कभी कभी ऐसी खूबियाँ बता दी जाती हैं जो जिंदा रहने वाले को भी नहीं पता कि मेरे अंदर वो खूबियाँ है या नहीं। लेकिन बहरहाल जो उनमें खूबियाँ थी, अल्लाह ताला वो तमाम खूबियाँ हमारे तमाम स्कॉलर्स और आने वाले पढ़ने वाले जनरेशन के अंदर वो चीज़ें हों, और उसी यही उनकी सच्ची सराज अक़ीदत होगी उनकी कि हम उनकी जो पॉजिटिव चीज़ थी उसको अडॉप्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेसर अल्ताफ़ आज़मी साहब को हम लोग याद कर रहे थे, और अभी थोड़ी देर में हमारे महफिल में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो गवर्नर केरला है वो भी आ रहे हैं। उनको ये बिल्कुल इनफॉर्मल मीटिंग है, और हमने उन्हें बता भी दिया था कि ये इनफॉर्मल मीटिंग ही होगी, इसमें कोई प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरा जो ताल्लुक़ है और मैंने उनकी किताबों से जो सीखा है, तो मेरा मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं ज़रूर आऊँ। वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच भी रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर हबीबुल्लाह खान साहब से, जो जामिया मिलिया में अरबी डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हाल में बैठी हुई तमाम शख्सियात, मैं सबको फ़र्दन फ़र्दन सलाम कर रहा हूँ। इस ताज़ियती नशिस्त के रूह रवा आसिफ आज़मी साहब, मुख्तलिफ़ शोबों से शरीक मेरे रुफ़क़ाए का, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। रब कायनात ने अज़ल से ये फैसला कर दिया है कि जो भी इस दुनिया में आएगा उसको जाना है। लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो उसके तमाम रिश्तेदार, जो रिश्तेदार हम कहते हैं, तो रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं, कुछ इल्मी होता है, कुछ कराती होता है, सब मिल करके उसे याद करते हैं, उनके महासिन को याद करते हैं, और अल्लाह ताला
اس سے ان کو اجر دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پروفیسر الطاف احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ادیب تھے، طبیب تھے، شاعر تھے، مفسر تھے، ایڈیٹر تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی۔ آپ کی درجنوں کتابیں ہیں۔ مشہور جرنلسٹ معصوم مراد آبادی نے کچھ نمبر بتا دیے ہیں، تو میں ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ کہوں اور وہ کچھ کہیں۔ ان کی کتابوں میں اگرچہ وہ طب کے آدمی تھے، فلسفے کے آدمی تھے، لیکن اسلامیات ان کا جو ہے مین موضوع تھا۔ وہ مفسر قرآن تھے، میزان القرآن، بہت اچھی تفسیر انہوں نے لکھا۔ توحید کا قرآنی تصور، تجلیات حق، ایمان و عمل کا قرآنی تصور، اسلام و جمہوریت، اسلامی شریعت کا اجمالی تصور۔ یہ میں نے چند کتابوں کے نام لیے جو کتابیں یہاں لگی ہوئی ہیں۔ ان تمام کتابوں کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ ابھی بات کہی گئی ہے اختلاف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ، اور اس کے اوپر بڑی ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اختلاف اسلام میں بالکل جائز ہے، مخالفت سے بچنا چاہیے۔ آپ کی جو رائے ہو آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اجر دے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں کہ حج کا معاملہ تھا، کچھ صحابہ آئے، انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے کھوٹے گاڑ دیے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ اپنے اونٹوں پہ یہاں باندھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت اچھا عمل ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حج کے موقع پر دوسرے لوگ آئیں گے اندھیرے میں، کھوٹوں میں لڑ کے گر جائیں گے، چوٹ لگے گی، انہوں نے کھوٹے پڑوا دی۔ رسول نے کہا آپ کا عمل بہت اچھا ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ اسلام ایک بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ چھوٹے سی دنیا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے یہ لکھ دیا، کبھی بھی حرف آخر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسلام تو جو ہے اجتہاد کے اوپر ابھارتا ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ آپ اجتہاد کرو، اگر آپ کا اجتہاد صحیح ہے تو آپ کو 2 ثواب ملے گا، اگر اجتہاد کہیں غلط ہو گیا تو کم سے کم 1 ثواب ملے گا۔ جو اجتہاد ہی نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں، بالکل۔ اب اس میں اجتہاد پر ابھارا جاتا ہے۔ مرحوم کا تعلق مدرسۃ الاصلاح سے تھا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے، جامعہ ہمدرد سے۔ میں اپنے طلبہ کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ 1984 میں مرحوم عبدالحمید صاحب کی دعوت پر وہ دلی تشریف لائے۔ 1989 سے باقاعدہ وہ جامعہ ہمدرد سے منسلک ہو گئے۔ مختلف شعبوں میں انہوں نے کام کیا، مختلف حیثیتوں سے کام کیا۔ جامعہ ہمدرد سے نکلنے والے انٹرنیشنل میگزین کے وہ ایڈیٹر رہے۔ 2004 میں جب وہ جامعہ ہمدرد کی سروس سے سبکدوش ہوئے تو ان کو کالی کٹ یونیورسٹی نے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں وزٹنگ پروفیسر مقرر کیا۔ پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب کا جو موضوع تھا وہ یونانی طب، یونانی فلسفہ، اس کی تاریخ، لیکن وہ یونانی فلسفہ کے اتنے ماہر آدمی تھے۔ جامعہ میں ایک تقریر انہوں نے کیا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، اور اس میں انہوں نے بتایا اور بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا ترجمہ کیا، اس پر کام کیا، اور اسی کو وہ اسلامی فلسفہ سمجھ بیٹھے، جبکہ اسلام کے اندر قرآن کا خود ایک تصور ہے۔ انہوں نے اگر اس پر کام کیا ہوتا، عربوں نے، شروع کے لوگوں نے، تو شاید ہم دنیا کے سامنے اسلامی فلسفہ پیش کر سکتے۔ آج ہم جو اسلامی نام پر پیش کر رہے ہیں وہ یونانی فلسفہ ہے، جس کو عربوں نے کاٹ چھانٹ کر کے اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ بڑی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، وہ سب کچھ تھے۔ عربی کی ایک مثال ہے موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت ایک عالم کا موت ہے۔ تو جب عالم کا کوئی موت ہو تو اس کے لیے یہ تعزیتی نشست بھی ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ آصف بھائی نے کیا ہے۔ انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے شان ہے کہ بہت عظیم شخصیتیں
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, तलबा सब लोग शरीक हो रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बताया गया कि वह अखबारियात के बड़े माहिर थे। तो मैं अपनी बात यही अल्लामा इकबाल के शेर पर ख़त्म करता हूँ। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफसानी करे, सब्ज़े नौरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके वरसा को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात को इज़हार करें। साबिक़ प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। मौजूद ख्वातीन हज़रात, बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ खड़े होकर और चंद 2-3 मिनटों की जो कैद लगाई गई है उसमें अल्लाह के ताल्लुक से अपने दरबार का इंतजार करूँ। तवील उनसे वाबस्तगी रही है और मेरी वाबस्तगी उनकी अलीगढ़ के ताल्लुक से थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से थी। और दिल्ली में आके तो हर कदम पे हर लम्हा हम उनकी तरफ देखते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्मों की हाल से मोहतरम नहीं। तो जो ताल्लुक रहा है वो उसका जिक्र मैं अल्फाज में यहाँ बयान नहीं कर सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेस्टर्न यूनियन का वो इलेक्शन हम लोगों ने बतौर जूनियर देखा है जब अल्ताफ आदमी साहब ने यूनियन सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ था और उनके मुकाबले में यहाँ के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब थे। अपने में एक अजीब सा इलेक्शन था। अलीगढ़ के हर इलेक्शन जो भी अलीगढ़ से वाबस्ता हैं सब जानते हैं, यूनियन के इलेक्शन अपने तर्ज के होते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूँ वसीर भाई शायद इसकी तारीफ करेंगे, हर भी हैं कि वो दो बड़े नज़रियात का वहाँ पे वो ऐसा इलेक्शन था जिसमें नज़रियात का मेरे ख्याल से उसके बाद फिर कभी कोई इलेक्शन को नज़रियात को इलेक्शन फिर वहाँ हुए ही नहीं, उसके बाद हुए ही नहीं। मुशीर साहब बाएँ बाजू के लेफ्ट के मिजाज के तंजीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और अल्ताफ भाई उसके बिल्कुल मुतज़ाद मुख्तलिफ नुमाइंदगी कर रहे थे। बड़ा कांटे का इलेक्शन हुआ और खालिद साहब भी इसकी तारीफ करेंगे कि बहुत कम वोटों से अल्ताफ भाई को मौक़ियत हासिल हुई। और अलीगढ़ के इलेक्शन में खालिद साहब भी इलेक्शन लड़े, हारे हैं, जीते और वसीर भाई भी इलेक्शन लड़े हैं। तो अलीगढ़ इलेक्शन में इलेक्शन होता है, उसके बाद सब एक हो जाते हैं, वहाँ की खूबसूरत है, वहाँ का बड़ापन है और जब वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल रिश्ता दूसरा हो जाता है। मैंने बात इसलिए खास तौर से कही कि बाद में मैंने यहाँ देखा कि मुशीर साहब से जब मेरा ताल्लुक यहाँ पे जामिया इस्लामिया में हुआ और अल्ताफ भाई से ताल्लुक जामिया हमदर्द में हुआ, इन दो बड़ी शख्सियतों के बीच में मैंने कहीं कभी किसी वक्त कोई ज़ाती तौर पर कोई जुमला मेरे कान में आज तक नहीं पड़ा। किसी दोनों मरहूम शख्सियतें यहाँ मौजूद नहीं है, मैं बिल्कुल फुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ ऐसी अजीब शख्सियतें थी। मुशीर साहब ने कभी 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 मुझसे कोई जुमला अल्ताफ भाई के बारे में कहा होगा, न कभी अल्ताफ भाई ने कोई जुमला मुझसे कोई जुमला मुशीर साहब के बारे में किसी ताल्लुक से इल्मी ख्यालात के तसव्वुर के ख्याल से कहा। तो ये ऐसी शख्सियतें थी और उसमें से एक शख्सियत अल्ताफ भाई की थी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुशीर साहब भी हमसे जा चुके हैं। तो ये ऐसे लोग थे जिनसे हम लोगों ने सीखा है और यही हमारी विरासत है और यही मुशीर साहब हुए, अल्ताफ भाई हुए, हमारी विरासतें हैं। चले गए हैं, बड़ी खला पैदा कर गए हैं, कमी पैदा हुई है, लेकिन बहरहाल अल्ताफ भाई की ऐसी अदा थी। और जैसे जिक्र किया गया इनकी सारी इतनी थी, इतना बड़ा इल्म था कि किताबें 50 किताबें यहाँ रखी हुई आपके सामने,
कितने उनकी तकारीर होंगी, कितने उनके लेक्चर्स होंगे, और दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ लेक्चर देने के होते हैं, देवबंद गए हों, नर्से गए हों, चाहे कालीकट यूनिवर्सिटी गए हों, कालीकट मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए हों, चाहे मिलिया इस्लामिया गए हों, चाहे जामिया हमदर्द में गए हों, इन्हें कितने हमें हमने उनके लेक्चर करवाए हैं वोट वाइज के प्लेटफॉर्म से, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पब्लिश भी नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं उनको अपने इल्मियत का कभी तो तकब्बुर और गुरूर दूर नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा उनमें इल्म था उतने ही उनकी शख्सियत में इंतसारी छुपाव था, बड़ा इल्म था और अपने इल्म में मुदल्लिल होते थे, हक़ाइक़ होते थे, तहक़ीक़ होती थी उनके पास, राय होती थी, वो राय अपनी किसी पर थोपते नहीं। बहुत सी बार मेरे आखिर में उन्होंने मेरे पास 2 किताबें भेजी, अभी जब फारूक भाई ने अपने दिखाने आए थे तो उन्होंने 2 किताबें मेरे पास भेजी, आपके तवज्जो से भेजी, वो 2 किताबें उनका कलाम का जो छपा और सरसैयद के ऊपर जो किताब थी वो उन्होंने नहीं भेजी, सरसैयद। अब सरसैयद की किताब आप पढ़िए, मैंने पढ़ी जो उन्होंने भेजी, एक पूरा चैप्टर सरसैयद के मजहबी ख्यालात के ऊपर उनका पूरा एक चैप्टर है, जिसपे लोग अक्सर लिखने से और बात करने से कतराते हैं। सरसैयद की तफसीर के बारे में लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं, जिक्र ही नहीं करते, उनके ऊपर बहस करने की बात तो दूसरी छापते ही नहीं है, अगर मुस्लिम भी छापने को तैयार नहीं है तो दूसरे लोग क्या छापेंगे उसको अपने कर। अल्ताफ भाई ने बड़े मुदल्लिल अंदाज में सरसैयद की मजहबी फिक्र का तज़किया किया है, ख्यालात का किया है, और ये कहा है कि सरसैयद का जो तरीक़ेकार था, जो तफसीर का तरीक़ेकार था वो सही था, उससे आप इख्तिलाफ कर लीजिए, लेकिन जो तरीके से सरसैयद तफसीर लिखी है, जो तहक़ीक़ करी है, जो लिखा है, जो भी उनका उसको उन्होंने जस्टिफाई किया अंदाज में। तो कोई आज समझता हूँ इस्लाम की चीज़ के बड़े बड़े माहिर हैं जो इनका कलाम की बातें करते हैं, वो तफसीर से कतरा के निकल जाते हैं। अरे ये अलग मौजू है, मैं कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्मी काम करे हैं, मौलाना की तफसीर पे उन्होंने कमेंट लिखा है वो भी मैंने पढ़ा, अल्लामा इक़बाल के मज़ामीन के ऊपर उन्होंने कमेंट लिखा है वो भी मैंने पढ़ा। तो सरसैयद हो या अल्लामा इक़बाल हो या मौलाना आज़ाद हो, ये हमारे तारीख़ के वो बड़े हिस्से हैं, इल्मी समाजी सियासी हिस्से हैं जिनका अल्ताफ भाई ने काम किया और एक राय रखी अपनी मंजिल राय से बात करी। लेकिन इन सब इल्मी कामों के बावजूद भी उनकी जो इंतसारी थी वो बड़े पैमाने की। किसी के बारे में मैंने आज तक अपने काम में अल्ताफ भाई के मुँह से किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी आज तक। मेरे से तकरीबन 40-45 साल ताल्लुक़ तो दिल्ली में हो गया, अलीगढ़ रहा होगा, और लिबास हो, अंदाज हो, गुफ्तगू हो, उसमें जो शाइस्तगी थी, जो 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 उनका बागवाना तरीका होता था, लोगों के सामने अदब के साथ बैठते थे, बात करते थे, आप ज़्यादा नहीं रखते कि इतनी बड़ी शख्सियत से आप बात करते हो। ऐसी शख्सियतों से हम मुतासिर हुए हैं, अगर फ़ख्र है वो हमें हमेशा फ़ख्र रहेगा कि हमने ऐसी शख्सियत के साथ बहुत गुजारा है, उनसे सीखने का हमें मौका मिला है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों के साथ वक्त भी गुजारा होगा वो इसका हमेशा इस नुकसान का हमेशा उनका एहसास रहेगा। अल्ताफ भाई मेरे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वोट बाई के भी मेरे 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 पैटर्न थे, मेरे करम फरमा थे। जब कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वोट बाई की कोई मसला होता था जिसमें वो लग जाता था, फंस जाता था, सियासी हो, तो हम अल्ताफ भाई की तरफ जाते थे, जामिया हमदर्द दौड़ते थे, उनको लेके आते थे। वो और शकील तमन्ना साहब यहाँ मौजूद नहीं है, वो एक दोनों साथी आया करते थे, एक ही कार में आते थे, एक ही बताते थे, तो हम उनसे मशवरे देते थे, वो हमारे लिए गाइड बनते थे, हमें राह दिखाते थे। तो ऐसी शख्सियतों के वो मालिक थे। बहुत सारे बात जहन में है, बहुत सारे वाक़यात जहन में है, वक्त की खैर भी है, और बहुत सारे लोग अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़ाती नुकसान का एहसास है उनके जाने से। कुछ अर्से पहले उनकी बेगम साहिबा इंतकाल हुआ, और मुझे वो वक्त शाम याद है जब अल्ताफ भाई ने फ़ोन किया कि शाहिद साहब वेंटिलेटर का इंतजाम करना है, कोविड में एडमिट हैं, मजीदिया हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। मैंने काजी साहब को फ़ोन किया, काजी साहब ने औरों को फ़ोन किया, मालूम हुआ जामिया हमदर्द में सिर्फ 7 वेंटिलेटर हैं यूनिवर्सिटी में, तो 7 किसी मरीज़ को दे रहे। वो ऐसा खतरनाक खौफनाक वक्त था, उसका क्या जिक्र करना, क्या बयान करना, और उसी रात मालूमात का इंतकाल हो गया। हम लोग इंतजाम भी नहीं कर पाए। अल्ताफ भाई इसके बाद से फिर ऐसे बैठ गए। मैंने उससे अक्सर कहा था भाई निकलिए बाहर आइए, मैंने में शायद साहब बस मैं गोशा नशीन हो गया हूँ, मेरी कुर्सी है, मेरी वेद है, और मैं उससे बैठ कर पढ़ने का काम करता हूँ।
वो जो जिसमें पढ़ने का आना है तो आपके सामने पेज पे मौजूद है। और प्रवीण ने बताया, लेकिन जो शख्सियत थी जिससे मेरा वास्ता पड़ा वो बहुत अजीब शख्सियत थी। मैं समझता हूँ कि जैसे कि पुराने ज़माने के मेडिवल पीरियड के दरवेश होते थे या आलिम होते थे, उस तरीके की वो शख्सियत थे। इल्म बहुत था लेकिन दरवेशी की जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह ताला हम सबको उनसे सीखने का मौका मिला है, उसको समझ में भी हमें अल्लाह ताला हमें तौफीक से अमल में लाए और उसके दर्जा फरमाए। आपके बहुत बहुत शुक्रिया किया, आपको बहुत शुक्रिया। जिसका जिक्र किया वो मेरे सामने है। अल्ताफ साहब ने अपनी किताब के दिवाचे में उसका जिक्र किया था जो इख्तिलाफ कर सकते हैं, और हमें वो जुमूद के बिल्कुल खिलाफ थे और इख्तिलाफ को वो कार खैर समझते थे। उन्होंने लिखा कि हमारे जहनों में ये बात पैवस्त कर दी गई है कि हमारे असलाफ ज़हनी बुलूग के उस बुलंद मकाम पर फायज थे जिससे आगे जाना अब किसी साहब इल्म के लिए मुमकिन नहीं है, और अगर कोई दीवाना इस हद को अबूर करने की जुर्रत कर बैठता है तो वो साहिबाने जुबो दस्तार के तानो तशनीर का निशाना ज़रूर बनता है। उस पर दीन में तहरीफ और तजद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उलमा और मुज्तहिदीन सल्फ की हर खता को मामूल समझ लिया गया है। मैं बस 2-3 मुकर्रिरीन हैं और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात रखें, हमें ख़त्म करना है। मैं जनाब ज़फरुद्दीन खां फैज़ान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ ले आए। ख़वातीन और हज़रात, वादाए दिल बड़ी हो कि नवाए आशिकाना जो दिलों को फतह कर दे वही फातह बनाना। अल्ताफ साहब ने आज इस बात का इजहार सबूत है कि उन्होंने दिलों को फतह किया है। जिंदगी की फिलासफी को समेटते हुए शायर ने कहा कि उम्र भर मसरूफ है मरने की तैयारी में लोग, उम्र भर मसरूफ है मरने की तैयारी में लोग, एक दिन के जश्न का होता है कितना इत्मीनान। आज इस हाल में हर बात आप लाइफ के इतने लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है। पिछले 50 सालों में मैंने इसी दिल्ली में बेपनाह तालिब की जलसों को अटेंड किया है, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। अल्ताफ आदमी साहब से मेरा ताल्लुक 1970 से है, 69-70 से, तो 50 साल से ज़्यादा अरसे का अहाता करना, और वो भी जब 2 मिनट और 4 मिनट की शर्त हो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो तहरीर है उसके ताल्लुक से हमेशा जिंदा रहेंगे। असल में बुनियादी तौर पर जो बात अल्ताफ भाई में थी, असल में दुनिया का दस्तूर यह है कि आए अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आए, लाई हयात आए, पैदा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले। लेकिन इंसान जब जाता है तो कुछ छोड़ के जाता है, वही चीज़ याद रह जाती है। अल्ताफ साहब की जो तहरीरें हैं उसके बारे में अब मुझ जैसा शख्स जो है यहाँ पर जो एजेंट्री है उसके सामने क्या तबसरा करूँ। अब उन्होंने इकबाल के ताल्लुक से कई किताबें लिखी, इस्लाम और सरमायादारी, इस्लाम और जमहूरियत, इस्लाम और इश्तराकियत वगैरह बहुत सारी किताबें वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। लेकिन एक किताब जो उन्होंने लिखी, हमारी हयात मिल्लत और हमारी दीनी जमातें, उसमें जो उन्होंने बातें कही, दरअसल वो मेरे लिए कम से कम समा कामोद रही। और उनकी पूरी लाइफ जब मैंने देखी तो मैंने यही देखा
कि सूरज की खुशामद में कड़ी धूप को मैंने लिखा है, कड़ी धूप की साया नहीं लिखा। बहुत मुश्किल होता है जब कन्फ्रंटेशन हो, आदमी जब कोई बात कहता है तो आमतौर पर यही है कि वो बात जो लोगों को पसंद आए। हमारा क्या ख्याल है, हम क्या बेहतर समझते हैं, हम उसको कहेंगे, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जितना भी इतराज हो। चुनाव उनकी वो जो किताब है उसको बड़े बड़े पब्लिशर छपाने को तैयार नहीं है। तो कॉलेज साहब गालबन जानबूझ कर की ये बात बोल कर गए, नहीं कह पाए, नहीं कहना चाहते थे कि उस किताब के छपवाने में आपकी कोशिश, काबिश और मदद और सब कुछ आपका जो फोरम था उससे वो किताब छपी। कोई छपवाने को तैयार नहीं, इसलिए कि मिल्लत मिली जमातों से टक्कर लेना था। आया मिल्लत और दीनी जमातें खोल के रख दिया उन्होंने। मासूम राजाबादी साहब यहाँ है, नहीं चले गए। एक जुमले में उन्होंने बात कही कि लोग, हमारी मिली जमातें जो हैं वो बह गई हैं, भटक गई हैं, डाइवर्जन हो गया है। अब ये तो तफसील से करने की बातें हैं, तो मौका नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इंसान को जिंदगी में ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो अल्ताफ आदमी साहब के अंदर थी। उन्होंने अपनी तहरीरों में इस बात को समझा, वो बात कहा और उसी लिए वो जिंदा रहेंगे। खामोश है तू, फिर भी सुखन जिंदा है तेरा, बरसों से हर लफ्ज के अफसाने बनेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बसीर अहमद खान साहब से मेरी गुजारिश है तशरीफ है। पुराने पाक की आयत का अठवाड़ा है, इसमें अल्लाह ताला रसूल के बारे में फरमाता है कि ये किताब का इल्म सिखाते हैं और हिकमत, और लोगों को पाक साफ करके संभालते हैं। अब हमारी हाकिम कहा जाता है उन लोगों को जो यूनानी मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बहुत बातें उनके इल्म के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा काम अगर उनका कोई है वो तफसीर पुराने पाक है। लेकिन पुराने पाक की तफसीर लिखना कोई मामूली काम नहीं है, हर एक के बस का काम नहीं है कि पुराने पाक की तफसीर लिखते हैं। और ये रिवायत है खासतौर से आजमगढ़ की, जिसमें अभी हालिया दौर के अंदर जो तफसीर लिखी गई है मौजूदा ज़माने में, उसमें आजमगढ़ के उलमा का बहुत बेशुमार हिस्सा है। मतलब हमीदुद्दीन फराही साहब का मुस्तकिल एक स्कूल है, उसके बाद फिर अमीर हसन इस्लाही साहब आए, और अभी मैंने देखा कि बहुद्दीन इस्लाही वहीदुद्दीन साहब खान साहब ने एक तफसीर लिखी थी, मेरे जो तर्जुमा किया था। अभी उनके साहबजादे नसरुल इस्लाम साहब, उन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। तो ख़ास बात यह है कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके वालिद साहब ने जो तफसीर ली थी और अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया वो मुकम्मल है, तो फिर दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो खुद उन्होंने अब जो तफसीर लिखी है, ये पुराने पाक एक ऐसा कहते हैं इल्म का खजाना है, तो उसमें जितने जितना जो शुरू करते रहे मुस्तकिल जो है वो फरों दिखाते रहते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये काम किया है और उनकी तफसीर सामने लोगों के आई नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और उन्होंने जो इख्तलाफात जिस बात को सही समझते थे उसके अंदर वो इख्तलाफ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरा ताल्लुक वो भी रहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रहा, वो यूनियन के सेक्रेटरी रहे, मैं भी सेक्रेटरी में रहा, सदर भी रहा। फिर उसके बाद वो जामिया अंदर में आ गए, तो हालांकि उनका ताल्लुक फिर से था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसी फैकल्टी में था, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड सोशल साइंस से। तो उसके बाद मेरे पास उसका चार्ज रहा, बाद में अल्ताफ साहब के कुछ दिनों के लिए चार्ज उनके पास रहा। अब मुझे जैसे बताया अभी अंसारी साहब ने कि नेक्स्ट डोर लेबर थे, तो हम लोग साथ भी रहे हैं, बहुत कई दफ़ा उनके घर पर जाके चाय पीने का मौका मिला। और बहुत ही मुतवाज़िन फैमिली इंसान थे और इख्तिलाफात उन्होंने किए। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, जन्नत में आला मुकाम से करे और उनके बच्चों को दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके बारे में अगर सबसे मौजूद शेर है तो मेरी समझ में आता है कि शायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया
जो सिलसिला हमारे असलाफ ने जारी रखा था उसे आगे बढ़ाने का काम अल्ताफ साहब ने किया। और उनकी एक छोटी सी नज़्म है 4-5 मिसरों की, राज़ ज़िंदगी। शजर से गिर रहे हैं जर्द पत्ते, शजर से गिर रहे हैं जर्द पत्ते, ये मसले जाएंगे पैरों के नीचे, मगर कुछ गम नहीं शाखे शजर को, इसे मतलूब है पैराहने नौ, लिबासे कोहना की हाजत नहीं है। मैं डॉक्टर सैयद फारूक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात करें। हमारे बाद एक दिन ऐसा भी आएगा, हमारे बाद एक दिन ऐसा भी आएगा, हमारा जिक्र तो होगा मगर हम ना हो। ये तज़किरा आज का है, अल्लाह मग़फ़िरत करे। और आपके बारे में आप सब ये बात वही कह सकता है कि हमारे बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा जिक्र तो होगा मगर हम ना हो, जिसने लोगों के लिए कुछ किया। ये किताब शहादत है इस बात। वरना यही कहते हैं कि कुछ इस तरह से रहो, माफ़ करिएगा, कि जब उठाओ मेरी मैयत माफ़ कर देना मुझे, है सफ़र मेरा तुम्हें नाहक परेशान कर दिया। तो इसी के लिए आना, लोगों का इकट्ठा होना, उसका तज़किरा करना बहुत बड़ी बात है। और हर मौजू के ऊपर उन्होंने लिखा है, तिब से मुताल्लिक़ उन्होंने लिखा है किताब है। न जाने कब से जड़ी बूटियाँ तुम्हें आवाज़ देती हैं, न जाने कब से जड़ी बूटियाँ तुम्हें आवाज़ देती हैं, जो तबीब सो गए सोने दो यारो तुम ना सो। अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में से तरक्की है। अभी डॉक्टर फारूक साहब छोटे भाई के बारे में कह रहे थे, मैं बड़ा इनका मशहूर हूँ। आपने साइंस के बारे में कहा कि साइंस से हम जुड़े हुए हैं और हम इस चीज़ को इतना एतकाद नहीं रखते। साइंस भी आज चांद पर हिंदुस्तान की पेशरफ्ती है, लेकिन उसके लिए भी दुआएं की। और ये साबित हुआ कि इंसान रिश्ते जोड़ता है। चंदा मामा घर की माता तो रिश्ते जोड़ते हैं, और वो रिश्ते जोड़ना जो है वो बड़ी बात है। वो आपकी शख्सियत थी और जिंदगी ऐसी जो हज़रत को सलाम करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, और मौत को ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। ये तो ज़िंदगी है। वरना ये शेर अक्सर पढ़ा जाता है कि लाई हयात आए दरवाजे चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। ये तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के वास्ते आएंगी और चलेंगी, ना कोई पूछने वाला। आदमी ऐसे नहीं आता। बड़ी दुआएं की जाती हैं, माँ बाप से पूछते हैं क्या क्या ख्यालात हैं, क्या क्या तसव्वुरात होते हैं, ऐसी औलाद होगी। अल्लाह ऐसे सारी दुनिया दुआ करती है, अल्लाह इनको बड़ा मकाम पर पहुँचे, बड़ा मकाम पर पहुँचे। तो मैं इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। उठाए हाथ याद की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर अल्ताफ अहमद आज़मी साहब ने तस्वीर कायनात और कुरान के मौजू पर बहुत कुछ लिखा है, और उनके एक मजमून की कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ
यहाँ इस तल्ख हकीकत का जिक्र करना मुनासिब न होगा कि मौजूदा दौर में तस्दीर फितरत के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में मुसलमानों का हिस्सा न के बराबर हो गया है, सिर्फ इसलिए कि वो साइंसी उलूम की तहसील में पीछे रह गए। इस गफलत की एक बड़ी वजह जिक्र और फिक्र में तफरीक है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका हर दौर में जिक्र की तरफ गया और फिक्र से बेनियाज रहा। एक छोटा सा तबका अहले फलसफा फिक्र की तरफ मायल हुआ लेकिन जिक्र से गाफिल रहा। एक दूसरी जगह उन्होंने लिखा कि मुसलमानों का वो तबका जो साइंसी उलूम की तहसील में हमातन मसरूफ है, उसको भी सोचना होगा कि इन उलूम की तालीम से सरसैयद को जो वाकई गरज थी वो पूरी हो रही है या नहीं। इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करना होगा कि जदीद उलूम व फ़नून के हुसूल का मकसद अब महज डिग्रियों का हासिल करना और उनके ज़रिए माशी हालात को बेहतर बनाना व संवारना रह गया है, लेकिन मोहसिन कौम का तस्वुर तालीम इससे कहीं ज़्यादा वसी था। मैंने शुरू में ही ये चंद जुमले जो अलग अलग जो उनके अशार पेश किए, मैंने कहा कि मैं किसी का तारुफ इस महफिल में नहीं कराऊंगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब की बात को हम इस महफिल के तितम्मे तक पहुँच गए हैं। जब ये खाका डॉक्टर नाजिश इस्लाही साहब बना रहे थे तो मैंने कहा कि हमें एक बेहतर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन हम इसको एक इनफॉर्मल मीटिंग रखेंगे। इस बीच में मोहतरम आरिफ मोहम्मद खान साहब थे जो केरला के गवर्नर हम सब जानते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि मैं तो उसको उस महफिल में ज़रूर रहना चाहूँगा जो महफिल प्रोफेसर अल्ताफ़ आज़मी साहब के नाम से होगी। वो हमारे बीच में महफूज इस महफिल में मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब हैं जो सीरिया के एम्बेसडर हैं। क्या आप कुछ इज़हार ख्याल करना चाहेंगे? तो दो जुमले आप भी प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब के लिए तशरीफ़ लाए। जनाब मोहतरम हिफ्ज़ुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कल ही हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों को पता है G20 तैयारियाँ बहुत जोशो खरोश से हैं। एक बहुत ही बड़ा इवेंट इस मुल्क के लिए, बहुत अहम। कुछ नाचीज़ को भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई, उसी सिलसिले में आना हुआ। तो मैंने प्रोग्राम देखा था इस ग्रुप में। बस मरहूम जो हम लोगों के बड़े भाई भी थे, सीनियर इस्लाही, मुकम्मल इस्लाही, लेकिन बहरहाल इस्लाह से इस्तेफादा किया और हमने बताते खुद उससे इस्तेफादा किया। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं यहाँ चला आया। मरहूम से मेरा कोई बहुत ख़ास इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ वो बहुत वक़ी और बहुत ही अहम था। कभी मैंने उनको किसी प्रोग्राम में तकरीर करते हुए सुना और एक या दो मेरी बहुत मुख्तसर मुलाकातें रही, लेकिन उसका असर ताबीर जहन में है और रहेगा। कम लोगों को देखा गया है जो अपने खिताबत में महारत रखने के साथ उनकी तहरीर भी बहुत ही ज़्यादा फिक्र अंगेज हुआ करती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे भी लोग बहुत कम होते हैं कि जब आप उनके साथ बैठें या उनसे बात करें या उनसे मिलें तो आपको ऐसा महसूस हो कि ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हमने कुछ सीखा है। तो मरहूम उन लोगों में थे जो बहुत खाल होते हैं और बहुत कम होते हैं। क्योंकि मुलाजमत के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहना होता है तो ऐसे मौके हम लोग तय कर देते हैं या उसमें शरीक नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में काम था तो हमारे सीनियर साथी हैं अब्दुल्ला साहब, तो उनके यहाँ मुझे एक किताब मिली और
मैं गया था तो वो किताब तसानीफ सर सैयद पे जो किताब है उसे पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। सर सैयद से बहरहाल जो लोग भी जिनका ताल्लुक इल्म से है, तालीम से है, उन्हें एक लगाव सा है, एक बड़ा एहतराम करते हैं सर सैयद की शख्सियत का और उनके खिदमात का। लेकिन जिस तरह से जितना जामे तारुफ सर सैयद का और सर सैयद अलैहिर्रहमा की तसानीफ का प्रोफेसर अल्ताफ साहब ने कराया है, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। सर सैयद की शख्सियत को जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, जहाँ जहाँ सर सैयद से तसामा हुआ है, वहाँ उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत ही वक़ी और इल्मी गुफ्तगू, इल्मी तनकीद की है उनके ऊपर। लेकिन साथ साथ ये भी जाहिर होता है कि सर सैयद जैसी शख्सियत का उनके अंदर बहुत एहतराम था। और बल्कि मैंने अपने कुछ सारी इंडियन साथियों से कहा कि भाई अगर आप लोग सर सैयद के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके नाम से करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो तसानीफ है कम से कम उसको दोबारा शाये करवा दीजिए ताकि लोग उससे आज के ज़माने में इस्तेफादा कर सकें। अभी पिछले दिनों चंद हफ्ते पहले एक किसी ने PDF ग्रुप में भेजा था एक किताब अल्लामा हमीद फराही की फी मलकुतिल्लाह, उसका उन्होंने तर्जुमा किया है। उसमें बहुत इधर उधर करने का उनको मौका तो नहीं मिला है क्योंकि वो तर्जुमा है, तर्जुमा में आदमी बहुत महदूद होता है, मुक़य्यद होता है। लेकिन जिस अंदाज से तर्जुमे के बाद उन्होंने हवाशी में रेफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि ये मलकुतिल्लाह जो है वो एक किताब खुद अल्लामा हमीद फराही ने अपने मदद के लिए कुरान की जब तफसीर लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने एक मुकदमा उसका लिखना था, उसके लिए कुछ इशारे थे, कुछ रेफरेंसेस थे जो उन्होंने अपने लिए और बाद में उसको जब तफसीर आती तो उसके लिए यकजा कर रखे थे। और उसको फिर बाद में किताबी शक्ल में एक छोटा सा रिसाला, मुख्तसर सा रिसाला 48-50 सफ़े का है, लेकिन उसका उन्होंने तर्जुमा किया। और तर्जुमा करने के बाद जो जो अक़वाल थे, जो जो उनकी आरा थी, जो जो उनके अफ़कार थे अल्लामा हमीद फराही साहब के, उसके जो रेफरेंसेस उन्होंने ढूंढे हैं माजी में उलमा का से लेके आज तक के जो उलमा है उन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर से खलीफा की सिफ़त क्या होनी चाहिए, कौम के लीडर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ों का जो उन्होंने रेफरेंस उसमें दिया है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मुख्तसर सा जामे सा कोई रिसर्च पेपर है। तो ये उनकी अपनी सलाहियत थी, ये उनकी अपनी खूबी थी, इल्म से इतना गहरा लगाव, और उस लगाव को उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। बाकी तालिब इल्मों के लिए जो चीज़ उन्होंने पेश की वो वाकई बहुत ही अहम है और हम सब के लिए उसमें इस्तेफादा की हमारी अपनी सलाहियत के मुताबिक उसमें गुंजाइश है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला बड़ों की मग़फ़िरत फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें सिर्फ मोहतरम आरिफ मोहम्मद खान साहब को सुनना है, उससे कबल बस हमने चूँकि खानवादे से शुरू किया था तो सरदार अहमद आज़मी साहब के साहबजादे इरफान आज़मी साहब के ख़यालात हमने सुने और इस महफिल में उनके भाई प्रोफेसर नसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बिरादर बुजुर्ग के बारे में इज़हार ख्याल करें, उसके बाद हम मोहतरम आरिफ मोहम्मद खान साहब के ख़यालात सुनेंगे। बातें तो तकरीबन सभी आ चुकी हैं अल्ताफ़ भाई के बारे में। अल्ताफ़ भाई अपनी ज़िंदगी में 3 शख्सियात से बेइंतहा मुतासिर थे, शाह उल्लाह देवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हमीद फराही रहमतुल्लाह अलैह और सर सैयद अलैहिर्रहमान। और वो सही मानों में फ़िक्र फराही के अमीन और अलीगढ़ तहरीक के तर्जुमान थे। और अपनी इस बात के सबूत में मैं जिन जो किताबों के हवाले देना चाह रहा था वो मुझसे पेशरो अब्दुर्रहमान साहब और दूसरे लोगों ने उसका इजहार कर दिया है। तफहीम सर सैयद जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन डिवीज़न ने शाये किया है, उसमें सर सैयद अलैहिर्रहमान की वो शख्सियत जो पूरी दुनिया जानती है कि एक समाजी मुसले थे, एक एजुकेशनल रिफार्मर थे, लेकिन सर सैयद के मजहबी अफकार को जिस तरह से उम्मत में सवालिया निशान बनाया गया है
उस पर जो पहला चैप्टर लिखा है अल्ताफ भाई ने कि सर सैयद एक मजहबी मुसरे, वो पढ़ने के लायक है। और यूट्यूब पे उनका लेक्चर भी मौजूद है कि सर सैयद एक मजलूम दानिश्वर, जिसमें उन्होंने दिखलाया है कि सर सैयद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनसे पेशरो बहुत सारे दूसरे हमारे अइम्मा और दूसरे हमारे खिलाफ कह चुके हैं। सर सैयद उससे पहले ध्यान नहीं दी, लेकिन बल गाड़ियों का सेहरा सर सैयद ही के सर हाउस से। दूसरी किताब जिसका रहमान साहब ने जिक्र किया, तसानी में सर सैयद का, जिसे शिवली मंदिर शाये किया, मैंने भी उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश की और ख़ासतौर पर जो सर सैयद की तफसीर के तारुफ उन्होंने जामे तारुफ कराया है, और तबय्युल कलाम जो सर सैयद ने इंजील और तौरात की तफसीर लिखी थी। तो मैंने भाई से कहा, भाई बताइए हम लोग एक किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप किस तरह से, क्योंकि आपके मिजाज में नहीं कि आप सरसरी तो कोई चीज़ लिख दें, आपने सारी किताबें पढ़ी होंगी, उसके बाद आपने इस पर तबसरा किया, इस पर तारुफ कराया, ये कितना मुश्किल काम था। तो हंसने लगे, कुछ बोले नहीं उस पर वो, लेकिन वाकई इस मेहनत और जाफशानी से उन्होंने सर सैयद ही का नहीं, दूसरी किताब उन्होंने अल्लामा शिबली की तमाम तसानीफ का तारुफ कराया, एक दूसरी किताब उनकी शिबली के ऊपर, उसमें भी शिबली की सारी किताबों का उन्होंने जामे तारुफ पेश किया है। तो ये भाई इन शख्सियात से बेइंतहा मुतासिर थे। अल्लामा फराही की बात जहाँ तक है, नज़्म कुरान के हवाले से और कुरान की तफसीर के हवाले से, जो लोग भी जानते इस्लामियात तालिब इल्म या कुरानियात को अच्छी तरह से वाकिफ़ है, उसूल तफसीर, तो तफसीर निज़ामुल कुरान का जिक्र आ गया, और उनकी किताब मुख्तलिफ में करीब इंशाअल्लाह शाये हो जाएगी। नज़्म कुरान पर जो फराही साहब का मेन काम था वो आ जाएगी। तो फिक्र फराही के लिए सही मानों में अमीन थे। 14 साल जौनपुर में अपनी प्रैक्टिस के दौरान अलीगढ़ से जाने के बाद, क्योंकि अलीगढ़ की बातें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, भाई ने न सिर्फ की मदद किया बल्कि वहाँ उन्होंने एक स्कूल भी कायम किया था मदरसा जाउल इस्लाम के नाम से, जो बदकिस्मती से उनके वहाँ से आने के बाद वो बंद हो गया और नहीं चल रहा। लेकिन वो समाजी कामों से भी कभी गाफिल नहीं रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्मी काम में लगे रहे और बाकी काम में छोड़ा। मैं गांव का छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ कि एक साल ईद के मौके पर गांव में कुछ बदमज़गी किसी वजह से हो गई, पूर्व और पश्चिम के मसले को लेकर। मस्जिद इत्तेफाक से पश्चिम मोहल्ले में थी और गाँव की इमामत पूरब मोहल्ले में थी, तो लोगों ने कहा पश्चिम वालों को बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, एक मस्जिद अलग बना दी जाए। हम अपने स्कूल में किसी मुदर्रिस की तनख्वाह के लिए 10 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन मस्जिद की तामीर के नाम पर किसी ने अपनी ज़मीन भी दे दी और 50,000 रुपये भी फौरन निकल आए। उस ईद को रोज़ मैंने अल्ताफ भाई को बेहद परेशान देखा, और दोपहर तक उन्होंने गाँव के तकरीबन सभी घरों में जाकर पूरी मुहिम के तौर पर इस बात को चलाया कि गाँव में दूसरी मस्जिद इस फितने और फसाद की बुनियाद पर नहीं बननी चाहिए। ज़रूरत होगी तो 2 नहीं 3 मस्जिदें बन जाएँ, लेकिन फसाद की बुनियाद पर मस्जिद की तामीर मुनासिब नहीं। अल्लाह का शुक्र था को मिलता वहाँ रुक गया, उनकी कोशिश हो गई है। रवायती अंदाज में था, भाई कोई देखता तो उनको कोई मौलवी या आलिम नहीं मानता, लेकिन मैंने देखा कि ख़ानदान में ही नहीं, मेरे गांव के भी सब लोग अगर किसी मजहबी मसले में भी अल्ताफ भाई को राय दे देते उसका पूरा एहतराम करते। ये एतमाद होते लोगों का। कई साल तक उन्होंने ईद और बकरीद के मौके पर हमारी ईदगाह में नमाज से कबल जो है तकरीर किया करते थे, लोगों की तालीम और तस्कीर का काम किया करते थे। कई साल उन्होंने किया जब तक वो जाते रहे इस बात पर। तो वो धर्म के शेरी मजमुओं का भी जिक्र आया है, तो मैं इस बात आपके मिला दूँ कि 2 शेरी मजमूए उनके छप चुके हैं, फुगान दीन शब और तिराने रहगुदर। तीसरा किसी वक्त भी आ सकता है, जंजीर शब, और 2 और शेरी मजमूए उनके कंपोज हैं। तो वो 5 शेरी मजमूए हैं जिसका उन्होंने मुझसे जिक्र किया था। और ये 2 किताब जो एक नज़्म कुरान वाली और दूसरी और किताब उनकी वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, वो भी बिल्कुल छपने के मरहले में है। कुरान की बेशबहा तालीमात और उम्मत मुस्लिमा का रवैया है। इस किताब का बेहद अंदाज इंशाअल्लाह हम तरीके उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि नजर आ जाए। 2 ये मजहबी किताब कुरानियात के हवाले से और 3 शेरी मजमूए उनके आए। यूट्यूब पे भाई के कई लेक्चर मौजूद हैं, सफेद नजरिए तालीम, सफेद एक मजलूम दानिश्वर, उम्मत मुस्लिमा का जवान, क्योंकि उनकी किताब इस वक्त आउट ऑफ प्रिंट चल रही हिंदुस्तानी मुसलमानों का जवान, वो किताब भी पढ़ने के लायक है। इसमें उन्होंने पूरा तज़किया किया है कि हमारे जवान के असबाब क्या हैं। तो वक्त चूँकि नहीं है और बातें तकरीबन सवाल चुकी हैं। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने दवारे रहमत में जगह दे, और हम लोगों को जो उनकी कभी जो नुकसान हुआ है उसकी तराफी भी हुई तुरंत पता करे। किसी शायर के एक मिसरा सही मानों में भाई उसके हजार थे कि लोग चुन लें जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, जिंदगी में वो किताबें मोतबर बन जाएगी।
यकीनन प्रोफेसर अल्ताफ आज़मी दुनिया में उनका जिस्म गया है, उनकी रूह गई है, लेकिन वो अपनी तहरीरों में, अपनी किताबों में जिंदा जावेद थे। यही वजह है कि हमने इस स्टेज की रौनक उनकी किताबों को बनाया है। जब आप लोग इस प्रोग्राम के अख्ताम पे ज़रूर देखें इन किताबों को, अगर उन्हें आपको हासिल हो सके तो उनको हासिल करें और उन्हें पढ़ें। यकीनन बहुत रोशनी मिलेगी और यही इस प्रोग्राम का मकसद भी है। अब बहुत ही मुख्तसर है उनका ये मजमूए कलाम का, उन्होंने इंतसाब में इस शेर को उन्होंने जिक्र लिखा है, उनका ही शेर है कि बहुत ही मुख्तसर है। अहमद खस्ता का अफसाना दरीदा लारे सहरा चिराग शब गुज़ीदा है। तो चिराग शब गुज़ीदा जो उनका मजमूए कलाम है, उसके मुझे लगता है कि अल्ताफ अहमद आज़मी साहब एक जिंदा जावेद चिराग है, एक ऐसा चिराग जिसकी रोशनी उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कि इल्म से, हिकमत से, अदब से मोहब्बत करने वाले, पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे ही पढ़ने वाले और इल्म और हिकमत से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत मोहतरम आरिफ मोहम्मद खान साहब की है जो आज इस महफिल में मौजूद हैं। मैं आखिर में बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मरहूम अल्ताफ अहमद आज़मी साहब हमारे सीनियर थे अलीगढ़, और अलीगढ़ में तो उतना हम बहुत जूनियर थे, ज़ाहिर है उतना ताल्लुक़ उनसे नहीं था, लेकिन दिल्ली में उनसे ताल्लुक़ खूब मजबूत हुआ। उनसे हमने इस्तिफ़ादा किया, उनके साथ बहुत नशिस्तों में, उनके घर पर, हमारे घर पर बहुत दफ़ा साथ बैठे। और वो न सिर्फ ये कि अलीगढ़ के नाते, सीनियर के नाते, और वो दर हकीकत बड़े भाई की तरह बड़ी हौसला अफजाई भी करते। मुझे याद आ रहा है कि किसी मसले पर मैंने एक मजमून लिखा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे वक्त पर छपा। सबसे पहले सुबह को अल्ताफ भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि मजमून तो ठीक है, दूसरी राय भी हो सकती है, लेकिन आपने जो पुरानी हकीम की आयत का जो हवाला दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो एक तरह से मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई, इसलिए कि उनकी इल्मियत, उनकी किताबें जिनका जिक्र हुआ है, और उनकी मेहरबानी थी कि वो कम से कम जब तक मैं यहाँ था तो उनकी नई किताब आती थी तो वो बड़ी शफ़क़त के साथ वो किताब हमें भेजते थे। बुनियादी तौर से वो तिब के तालिबे थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस्लामियात में, और इससे बड़ा कोई और नमूना नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हैं तो एक किताब लिख दीजिए।
उन्होंने तो किताबें ही किताबें लिखी और वो भी इतने संजीदा मौज़ूआत पर। तो अभी आपने फरमाया कि 14 साल उन्होंने जौनपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस की, बहुत ही काबिल नवाज तबीब थे, एक खामोश तबीयत इंसान जो आम तौर से हम ऐसे लोगों में ये खूबी पाते हैं जो इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। भीड़ मेरे ख्याल से वो बहुत पसंद नहीं करते थे, बहुत बड़ा मजमा हो, लेकिन जिन नशिस्तों में मुझे उनके साथ का मौका मिला है तो हम बड़े गौर से उनको सुनते थे और उस ताल्लुक की बिना पर, ज़ाती ताल्लुक की बिना पर, जो चूँकि मैं भी दिल्ली में 1980 में आ गया था, तो उस तरह मैं उनके ख़ानदान के लिए, उनके भाई के लिए, उनके बेटे बेटियां, उनके लिए तो ये है ही बहुत बड़ा सदमा। लेकिन हम भी उसे, उनके जाने को एक ज़ाती नुकसान के तौर पर मैं देखता हूँ। इसलिए कितनी दफ़ा ऐसा होता है, कितनी दफ़ा होता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और कहीं मुझे लगा कुछ इश्तबा दिल में पैदा हुआ, शुबा पैदा हुआ, तो मैं अल्ताफ भाई को फ़ोन करता था कि अल्ताफ भाई इसके मानी किस तरह लिए जा सकते हैं, और वो हमेशा रहनुमाई करते हैं। तो उनका एहसान है हमारे ऊपर, सिर्फ बड़े भाई की तरह ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने, मैं कहूँ कि हमने उनसे इल्मी इस्तिफादा भी हासिल किया। शाहिद साहब ने बताया कि वो यूनियन के सेक्रेटरी रहे, हम तो उस साल शायद हमारा दूसरा साल था अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो मैं ये कोई जो बातें बताई थी वो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अलीगढ़ के इलेक्शन तो ऐसे ही होते हैं, अलीगढ़ की रिवायत ही यही। हमारा इलेक्शन अख्तरुल वासी साहब से हुआ और बहुत ही कांटे की टक्कर थी, बहुत थोड़े से वोट से भी जीता था। ऊपर कोर्ट के तालिब इल्मों ने मुझे बुलाया और अख्तरुल वासी साहब का घर वहीं नजदीक में था, तो मैं मीटिंग खत्म करके अख्तरुल वासी साहब को, ये इलेक्शन से 2-3 दिन पहले की बात, मैं इलेक्शन मीटिंग खत्म करके और अख्तरुल वासी साहब के घर पहुंच गया। अख्तरुल वासी साहब तो अपने इलेक्शन की मुहिम लगे हुए, मैं उनके घर पहुंच गया, चाय पी और उनकी वालदा से अपने सर पर हाथ रखवाए। तो अलीगढ़ में तो ये अलीगढ़ के लिए तो खास है। अलीगढ़ में कभी कोई कैंडिडेट अपने आप को वोट नहीं देता, हमेशा अपने मुखालिफ को वोट देते। ये हमारी तरबियत का हिस्सा रहा है। मैंने पार्लियामेंट के किसी इलेक्शन में भी, इतने इलेक्शन लड़े, कभी अपने आप को वोट नहीं दिया, चूंकि अलीगढ़ से वो तरबियत हासिल। और हमेशा जैसे अलीगढ़ में बैलेट बॉक्स को दिखा के कैंडिडेट जो होते हैं तो निशान मार्क करने के बाद खुला लाके और तब बॉक्स में डालते हैं ताकि लोग देख लें कि उसने अपने आप को वोट नहीं दिया। ये तो अलीगढ़ की ये जबरदस्त रिवायतें हैं। अब कितना है मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं सोच रहा था जब खबर लगी अल्ताफ भाई के भाई से बात हुई, उनके बेटे से बात हुई, तो फिर एक किसी ने लिखा है कि जब कोई बहुत अजीज
जिससे गहरा ताल्लुक हो, दोस्त रिश्तेदार हमसे पहले चला जाता है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे दिल में शिकायत होती है कि आप हमसे पहले क्यों गए। अल्ताफ भाई बड़ी खूबियों के मालिक थे, और मुझे बड़ी खुशी होगी, अभी बसीर भाई ने कुरान हकीम की एक आयत का रेफरेंस दिया, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। 3 आयतों में ये कार नबूवत प्रोफेटिक मिशन के बारे में ये आया, लेकिन एक चौथी आयत का एक टुकड़ा है। और मैं जब अल्ताफ भाई की किताबों पर गौर करता हूँ, खास तौर से जिसका जिक्र ज़फ़रुद्दीन खान फैज़ान ने किया, तो मुझे वहाँ पे लगता है कि उसका उनके ऊपर बहुत असर है। वयदअ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम। और कार नबूवत में, प्रोफेटिक मिशन में ये चीज भी शामिल है कि इंसानियत के गले में और पैरों में जो तौक़ व सलासिल डाल दिए गए हैं, उनको तोड़ा जाए। अल्ताफ भाई की मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्ताफ भाई की किताबें पढ़िए, आपको वो चीज साफ नजर आती है जहां उन्होंने ऐसे तंजीमें या लीडरशिप, जहां उन्हें लगा है कि वो दूसरी बात भी कहनी चाहिए, उन्होंने कोई हिचक नहीं की है। और हम आमतौर से जब खबर मिलती है कि किसी का विशाल हो गया, तो हम आमतौर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। लेकिन कुरान हकीम में एक और आयत जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम इंसान की फिक्र को, उस गमज़दगी की हालत में उसकी फिक्र को यकसर तब्दील कर देती, और वो है वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। और तुम्हारी इंतहा ये है कि तुम अपने रब में जाकर मिल जाओ। तुमको एग्री करता हूं आपसे कि इंसान की जिंदगी मतलब किसी मकसद के लिए रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह आपने कोई भी चीज इस दुनिया में बगैर मकसद के पैदा नहीं की। तो यकीनन अल्ताफ भाई ने अपनी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ करी, और वो मकसद ऐसा है, अल्ताफ भाई चले गए, लेकिन जब तक ये किताबें रहेंगी, लोग इनसे इस्तिफादा उठाते रहेंगे, अल्ताफ भाई का नाम जिंदा रहेगा। और चूंकि आसिफ आज़मी साहब, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नशिस्त का इनेकाद किया, और उन्होंने मुझे भी इत्तला दी और ये मौका दिया कि मैं अल्ताफ भाई मरहूम को खिलाल अक़ीदत पेश कर सकूँ। और वो चूँकि रिसोर्सफुल आदमी हैं, आसिफ आज़मी साहब, आपके लिए कह रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी गौर कीजिएगा कि अगर सब नहीं तो कुछ किताबें अल्ताफ भाई की, खास तौर से अहयाए मिल्लत और हमारी तंजीमें, दीनी तंजीमें वगैरह और भी हैं उनकी ऐसी किताबें, या सरसैयद वाली, जो बार बार कहा गया है, उस कहानी को नहीं बताना चाहता, उसमें मैं शरीक था कि किस तरह अलीगढ़ ने रिफ्यूज़ किया सरसैयद को छापने के लिए। तो अगर इन किताबों को आप, इनमें से सब नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ किताबों को अगर देवनागरी स्क्रिप्ट में भी छाप दें, हिंदी का जुबान मत बदलिए, सिर्फ स्क्रिप्ट बदलिए,
बदलना भी नहीं है, उनको भी जो आज इस रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, और वो बड़ी तादाद है आज की तारीख। तो अगर कुछ ये इनिशिएटिव लिया जा सके तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अल्ताफ भाई के लिए वो बहुत ही पुरमानी खिराज अकीदत होगा, बल्कि उससे हमारी नई नस्लों को फायदा उठाने में भी सहूलत हो जाएगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें, और हम उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, हम उस विरासत के साथ इंसाफ कर सकें। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद। मैं ख्वाजा शाहिद साहब से, रफीक खां फैजान साहब से, प्रोफेसर बसीर साहब से, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ किताबों के साथ हम खड़े हो जाएं आके, क्योंकि वही हम सब उनके इल्मी वाले से, मैं नसीम साहब से, प्रोफेसर नसीम साहब से, इरफान साहब जो उनके साथ आते हैं उनके, और अब्दुर्रहमान साहब से, और आइए तशरीफ आए। हम उनकी किताबों के साथ खड़े हैं, यही वो सरमाया है जो हमेशा के लिए बाकी रहेगा, और इससे अल्ताफ आज़मी साहब को हम याद रखेंगे। जैसा मौका लगेगा उधर से उतरेंगे ना, उधर से उतरेंगे।